या हाय एवरीवन, दिस इज अवनी, आई एम आशु। आई थिंक आप सब हम लोगों को जानते होंगे, कुछ हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं। काफ़ी सारे लोग ऐड कर चुके हैं, कुछ लोग ऐड कर रहे हैं, बट आई थिंक वी शुड स्टार्ट दिस ऑन टाइम। एंड Avni will take us through some derivative presentation which will be short and crisp. We wanted this basically session because there are a lot of derivative and advisory calls which keep reaching you from our desk, but there are so many questions around it, and there are so many calls, spreads which I give on TV. There are so many questions around it. There are a lot of people who wants to learn and understand derivatives. A lot of people, in spite of getting convinced of derivatives, don't trade because they want to understand the rationale behind those trades. So I think if I go on, there will be so many questions in the minds of the people, and वो जब तक वो confidently answer नहीं मिलता, तब तक there are a lot of people who are convinced, who feel happy about trade, who appreciate the trade, but don't make use of that trade. So I think I requested Avni, who is our derivative analyst. She's a very seasoned player. She's on media. She's the backbone of derivatives, to take us through some basic nuances and very short and crisp. और उसके बाद I think this session is primarily where we will be answering your questions, and those questions could be anything. It could be on derivatives, it could be on options, it could be on spreads, it could be on market, it could be on sectors. We'll try to answer most of them. I've already received few questions which are generic in nature, but very nice and good questions. Once we will answer that, it will help everyone to understand. Having said that, still our chat box is open, and you can just mention your name and just ask the question. We'll try to answer most of them. So over to you, Anvi. Thank you, Ashu sir. As Ashu sir said कि आज का जो webinar है वो कोई ज्ञानबाजी वाला webinar नहीं होगा. We are going to discuss and we need your participation also. एक जो basic चीज है कि क्यों options करना है and why is it the right time to start trading in options if you have not been doing so far. क्या fear है? So we are going to be addressing more of question and answers. We'll be talking less, you'll be talking more, and then we'll have a very good discussion with each other. So I think that is how we'll go forward. So to first start with, just one sec. So I believe आप सभी को दिख रहा है presentation. So now the scope of presentation. आज हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या हम बात करने वाले हैं और फिर क्या आगे we'll be discussing together. So why derivatives? Why trade in options? Option buyer और seller के बीच में फर्क क्या है? What are the strategies and what are the types of strategies? And then we'll move on to the Q&A session. So ये स्लाइड में आपको दिखेगा कि एवरेज डेली टर्नओवर एनएसई में कैसे अभी बदलाव आया है. सो इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में इफ यू सी दिसंबर, नवंबर और ये मंथ ऑन मंथ जो चेंज दिखाई दे रहा है. इक्विटी फ्यूचर्स में दिखे कितना इंटरेस्ट बढ़ चुका है लोगों का, पार्टिसिपेशन कितना बढ़ चुका है. तो अगर आप देखेंगे जो नवंबर में जो फिगर्स थे, So 1,14,510 crores का था, and now अभी जो 39% इंक्रीज हमें सिर्फ दिसंबर के महीने में देखने मिला है. सिमिलरली स्टॉक फ्यूचर्स में 37.5% से इंक्रीज हुआ है पार्टिसिपेशन, एंड इंडेक्स फ्यूचर्स में 46% से पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है. बट द इंटरेस्टिंग फिगर्स आर ऑन द लोअर साइड. ये जो एरिया है इसमें आप देखेंगे इक्विटी ऑप्शंस में, मतलब ओवरऑल इक्विटी ऑप्शंस में 52% से इंक्रीज हुआ है. उसमें भी स्टॉक ऑप्शंस में 104% है, माने कि ऑलमोस्ट डबल पार्टिसिपेशन हो चुका है. जो पहले 4-4.5 करोड़ का पार्टिसिपेशन होता था, अभी 9,000 करोड़ का पार्टिसिपेशन होने लगा है. इंडेक्स ऑप्शंस में पहले 42,000 का था, अब 61.8, माने ऑलमोस्ट 62,000 करोड़ का पार्टिसिपेशन हो रहा है रोज के रोज. ये डेली टर्नओवर है. सो दैट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट अ 50% जंप. तो अब ऐसा अगर इतना मार्केट है और इतना पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, सो आर वी रेडी टू मिस आउट ऑन सच अ ह्यूज सेगमेंट ऑफ ऑप्शंस? सो दैट इज द रीजन व्हाई. अगर आप ये राइट साइड पे अगर आप चार्ट देखेंगे
तो ये चार्ट अभी तो NSE ने ये चार्ट देना भी बंद कर दिया है। ये 2017 तक का जो चार्ट है, इसमें आप देखेंगे जो ब्लू लाइन है वो है कैश सेगमेंट और नीचे रेड लाइंस जो है वो है FNO सेगमेंट। तो आप देखेंगे एक लगातार जो बढ़ावा आ रहा है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में, इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन हो रहा है कि अगर आप ये सेगमेंट में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, देन यू आर मिसिंग आउट अ ह्यूज पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रैटेजी इन द ओवरऑल इक्विटी मार्केट। सो इसलिए हमें ऑप्शंस में ट्रेड स्टार्ट करना है। एंड व्हाई दिस इज द राइट टाइम? अभी आपका कैश पोर्टफोलियो तो बढ़ ही रहा है, सभी जन का बढ़ रहा है पोर्टफोलियो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पिछले 1 साल में किसी ने इन्वेस्ट किया हो और अगर रिटर्न्स अच्छे नहीं आए हो। तो ऐसे मार्केट में जब वी आर ऑलरेडी मेकिंग मनी, कंसिडर दिस ऑप्शन ट्रेडिंग एज योर इन्वेस्टमेंट, लर्निंग इन्वेस्टमेंट। आप अगर आप अभी ट्रेड कर रहे हैं, द मार्केट इज नॉट सो डिफिकल्ट राइट नाउ टू ट्रेड इन अ यूनिडायरेक्शन वे एज फार एज ऑप्शंस आर कंसर्न्ड। तो अभी आप डालिए, अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाता है तो यू विल नो एग्जैक्टली कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। और जब सही समय नहीं होगा, जब मार्केट में ओवरऑल ये ऐसी तेजी खत्म हो जाएगी, बाय दैट टाइम वी विल बी वेरी वेल इक्विप्ड टू ट्रेड इन ऑप्शंस। अभी से आप स्टार्ट करेंगे ट्रेड करना तो आपको एक धीरे धीरे अंदाजा आ जाएगा कि ऑप्शंस में क्या क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होता है, प्रीमियम कैसे गलता है एक्सपायरी के नजदीक। ये सारे जो छोटी छोटी ऑप्शन से रिलेटेड चीजें हैं वो आपको समझ में आ जाएगी, और आपकी मिस्टेक्स क्या हो रही है, क्या समझने में हम गलत कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो जब एक्चुअली ऑप्शंस का मार्केट आएगा, जब इक्विटी मार्केट, कैश मार्केट थोड़ा सा मंदा हो जाता है या साइडवेज भी हो जाता है, आपको पोर्टफोलियो में इतने रिटर्न्स नहीं दिखेंगे जो पिछले 2-3 महीने में दिखे हैं, तब आप ऑप्शंस में कितने अच्छे से आप ट्रेड कर पाएंगे, वो अभी से करना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा वो टाइम पे हाउ वेल इक्विप्ड यू विल बी। तो अभी बायर और ऑप्शन सेलर, अगर ये अभी एक बड़ी दुविधा होती है सभी लोगों को कि मैं ऑप्शन बाइंग करके काम करूं या मैं ऑप्शन सेलिंग करके काम करूं। तो एक जो बेसिक डिफरेंसेस है कि जब भी आप बायर हो, आप का फिक्स्ड लॉस होता है और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। एंड अगर आप सेलर हो तो आपका प्रॉफिट फिक्स्ड है बट लॉस अनलिमिटेड है। बट ये हो गई सारी टेक्सचुअल बातें। अभी हकीकत में होता क्या है कि इफ यू कंसिडर दैट यू आर पुटिंग 10 रुपीज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, ओके, एंड इट बिकम 0, तो आपका लॉस फिक्स्ड है, 10 रुपए का ही लॉस है। बट इसको अलग तरीके से आप अगर सोचिए कि ये जितना कैपिटल आपने डाला था उतना पूरा का पूरा वाइप आउट हो गया, तो दैट इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट कि आपका 100% कैपिटल लॉस है, भले वो कैपिटल आपको पता है पहले से कि कितना होगा मेरा। एंड सिमिलरली इसमें अगर आप सेलर हो तो इट इज ऑब्वियस कि आपका जो लॉस होता है, अगर आप गलत पड़े तो लॉस अनलिमिटेड होता है। इन दैट केस आपका जो काम आएगा वो है स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी, कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। इसमें आपका प्रॉफिट फिक्स्ड ही रहेगा कि आप अगर ऑप्शन सेल करते हो तो जितना प्रीमियम आप कलेक्ट करते हो उतना ही प्रॉफिट होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। दूसरा, बायर ऑफ एन ऑप्शन में थीटा नेगेटिव होता है। अगर मार्केट वहीं के वहीं थम जाती है, वहीं के वहीं रुक जाती है, तो भी आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है दैट इज गोइंग टू कम डाउन ऑन डेली बेसिस बाय अ वैल्यू कॉल्ड थीटा। थीटा होता है टाइम वैल्यू। तो ये टाइम वैल्यू धीरे धीरे एक्सपायरी जैसे नजदीक आती है वो धीरे धीरे कम होते जाता है, आपका प्रीमियम गलने लगता है। और यही चीज ऑप्शन सेलर के लिए बेनिफिशियल होती है, क्योंकि अगर आपके डायरेक्शन में नहीं भी जाता है मार्केट तो भी आपका थीटा पॉजिटिव है कि आपका ऑप्शन का प्रीमियम तो कम होने ही वाला है। तो आपने जिस भाव में बेचा था, अगर मार्केट वहीं के वहीं रह गई तो भी आपका जो सेल किया हुआ ऑप्शन है उसका प्रीमियम कम होते जाएगा और आपका प्रॉफिट बनते जाएगा रोज के रोज। तो ऑप्शन बायर में एक और चीज है कि इनिशियली आपको पैसा अपने जेब से देना है, देयर इज अ प्रीमियम आउटफ्लो। एंड ऑप्शन सेलर में आप बेच रहे हो तो आप ऑब्वियसली आपको प्रीमियम, आप यू आर पॉकेटिंग दैट प्रीमियम, मार्जिन उसमें मार्जिन अमाउंट रहता है, उसके ऊपर आपका इनिशियल इनफ्लो होगा। ये एक बेसिक डिफरेंस है बायर एंड सेलर में। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम बाय करें या सेल करें। अगर आप में से कोई भी, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोई भी ऐसा एक इंसान हो कि मेरे को बता दे कि मैंने सिर्फ ऑप्शन बाइंग का काम किया है और मेरा अच्छा पैसा बना है।
एंड कोई अगर ऐसा भी है कि वो बोलेगा अगर मैंने सिर्फ ऑप्शन सेलिंग का काम किया है और मैंने पैसा बनाया है। ये अगर आप पिक्चर देखोगे तो अभी का जो मार्केट है, आप ऑप्शन बाय करके चल रहे हो फिर भी वो जीरो हो जाता है, आप ऑप्शन सेल करके चलते हो तो मार्केट इतना मूव हो जाता है कि आपका जो प्रीमियम जितने में बेचा था उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, गैप ओपनिंग हो जाती है। तो ये सारे क्वेश्चंस में ना तो ऑप्शन पैसा बायर पैसा बना रहा है, ना ही सेलर पैसा बना रहा है, और आप एक बैठ जाते हो और सोच के कि हम कर क्या रहे हैं। तो इसमें रिस्क क्या होता है? बायर का रिस्क ये होता है कि अगर आप मार्केट आपके डायरेक्शन में इमीडिएटली मतलब बहुत ही जल्द नहीं मूव होती है और एक बड़े प्रमाण में मूव नहीं होती है तो आपका जो प्रीमियम है वो इतना ज्यादा बढ़ेगा नहीं जो आप ऑप्शन बाय कर रहे हो उसका। तो इसमें प्रीमियम टाइम वैल्यू डेप्रिसिएशन इसको बोलते हैं कि टाइम वैल्यू जो है आपका रोज के रोज धीरे धीरे कम होने वाला है, ऑप्शन का प्रीमियम धीरे धीरे कम होने वाला है। तो ये एक बड़ा रिस्क होता है बायर के लिए। अब सेलर के लिए रिस्क होता है कि आप बेच के तो गए, एक डायरेक्शन आपने सोचा था और इस डायरेक्शन के हिसाब से आपने या तो कॉल बेची है या पुट बेची है, बट अगले दिन हो जाता है गैप ओपनिंग। तो आपने ये भी सोच के रखा था कि हम स्टॉप लॉस ये वाला लगाएंगे, बट अगर गैप ओपनिंग हो जाती है तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। सो गैप ओपनिंग एंड रनिंग इनटू अनलिमिटेड लॉस, और जब ये प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट होता है तो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, तो वो अनलिमिटेड लॉस सिनेरियो हो सकता है। ये दो एक ऑप्शन सेलर के लिए बहुत ही एक खतरनाक चीज हो सकती है, बहुत डेंजरस चीज हो सकती है, जिनका हमें ध्यान रखना है। सो नेट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको मार्केट में व्यू नहीं समझ में आ रहा है एंड आपका अगर व्यू गलत जा रहा है तो एक और तरीका है कि जिससे हम ये दोनों ही चीजें संभाल ले कि अगर आपका टाइम वैल्यू डेप्रिसिएशन का जो फैक्टर है कि आपका प्रीमियम गलते जा रहा है उस चीज को भी संभाल ले, और ये गैप ओपनिंग हो जाए तो उस चीज को भी हम संभाल ले। तो हम ना तो बाइंग करेंगे ना सेलिंग करेंगे, हम दोनों चीजें एक साथ कर सकते हैं। तो तब आता है, इसको बोलते हैं वैनिला ऑप्शंस, कि आप सिर्फ बाय कर रहे हो या सिर्फ सेल कर रहे हो। तो हम ये दोनों ही रेकमेंड नहीं करते हैं अनटिल एंड अनलेस कि आपका कन्विक्शन इतना ज्यादा हो और रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो, तो ये चीज हम कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट वी रेकमेंड इज गोइंग फॉर स्ट्रैटेजीज। अब ये स्ट्रैटेजी क्या होती है? या तो ये होगा एक कॉम्बिनेशन फ्यूचर और ऑप्शन का, या ये कॉम्बिनेशन हो सकता है 2 और मोर लेग्स ऑफ ऑप्शंस। आप 2 या 3 अलग अलग स्ट्राइक मिला के एक आपकी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो इसके डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी के ऊपर एक पूरे दिन का हम वेबिनार कर सकते हैं कि इन डेप्थ हर एक स्ट्रैटेजी को समझने के लिए, बट आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि ऑप्शन स्ट्रैटेजीज काम कैसे करती है। तो ये कौन सी टाइप की स्ट्रैटेजीज है? सबसे पहला तो जो मैं हर एक जन को रेकमेंड करती हूँ कि अगर आपके पोर्टफोलियो में FNO स्टॉक्स है तो उन स्टॉक्स के सामने आप हर महीने एक कॉल, दूर की कॉल, आप मान लीजिए 5%, 6%, आपका जैसा व्यू बनता हो और जैसा रिस्क एपेटाइट हो, उस हिसाब से आप स्ट्राइक सिलेक्ट करके वो कॉल हर महीने आपको बेचते जाना है। सो दैट इज कॉल्ड अ कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी, दैट इज अगेंस्ट पोर्टफोलियो। वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना जरूरी है, अदरवाइज इट बिकम्स अ स्पेक्युलेटिव ट्रेड। दूसरा होता है बुल स्प्रेड्स, बेयर स्प्रेड्स। बुल का मतलब ही होता है कि तेजी है, तो तेजी में हम क्या करेंगे, मंदी में हम क्या करेंगे। इसके अलावा एक और स्टेप आगे हम इसको लेके जाते हैं तो आ जाते हैं रेशियो स्प्रेड्स। रेशियो स्प्रेड्स कैसे काम करते हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। एंड आखिर में होता है कैलेंडर स्प्रेड्स। तो कैलेंडर स्प्रेड्स भी नॉर्मली इंडेक्स में और वो भी बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये स्ट्रैटेजीज के इन डेप्थ हम एक और वेबिनार अलग से रख सकते हैं। अभी हम इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट आगे इसके जो एडवांटेजेस है, जो फर्स्ट बेसिक स्ट्रैटेजीज है कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी, उसका एक सिंपल सिनेरियो मैं बता रही हूँ कि अगर आपने एक फ्यूचर खरीदा होता 21,800 में, और मान लीजिए आज ही के दिन में अगर आपको व्यू लग रहा था कि 21,800 का सपोर्ट है और मैंने फ्यूचर खरीद लिया, बंद कहाँ पे हुई है मार्केट, लास्ट में पैनिक होता कि नहीं। तो ये चीजें अगर कंट्रोल करनी है तो आप खाली फ्यूचर मत बाय कीजिए, आप सामने एक और कॉल भी बेच दीजिए। मान लीजिए मैंने 22,000 की कॉल बेची है 250 रुपए में, फेब्रुवरी मंथ की, मंथली एक्सपायरी की।
तो इसमें होता क्या है कि मुझे जो बफर है नीचे और 250 पॉइंट का बफर मिल जाता है। मेरी स्ट्रैटेजी 21,550 तक न्यूट्रल है। तो ये जो इंटरमीडिएट वोलेटिलिटी होती है कि आज नीचे आ गया कल ऊपर आएगा, या ये छोटे छोटे जो डिप्स होते हैं, छोटे छोटे मूव्स जो होते हैं जिनमें हम गलत पड़ते हैं, उसके लिए हमें एक बफर मिल जाता है। एंड देन यू कैन कीप मॉडिफाइंग द स्ट्रैटेजी। वो कैसे करना है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या हमें बुक आउट कर लेना चाहिए, स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, ये सारी चीजें अगर आपको कभी भी जाननी हो तो यहाँ पे हम बैठे हैं। हमारा काम ही ये है कि हम आपके जो पोजीशंस है उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या उसको कंप्लीटली स्क्वायर ऑफ करना है। तो ये गाइडेंस के लिए हम यहाँ पे है आपके लिए। सो वी आर एट योर सर्विस, यू कैन कंसल्ट अस एनी टाइम। दूसरी जो स्ट्रैटेजी है, अगेन मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूँ कि इसमें फर्क क्या होता है। अब मान लीजिए आपका व्यू पॉजिटिव था और आपने एक बुल स्प्रेड बिठाया हुआ है, 21,800 की कॉल मैंने खरीद ली है, सामने मैंने 22,000 की कॉल बेच दी है। क्या होगा कि अगर ये मान लीजिए 21,800 के ऊपर आता ही नहीं है, मार्केट गिरता भी नहीं है बट 21,800 के ऊपर आता ही नहीं है फरवरी एंड तक, तो आपने तो 320 रुपए भरे थे बाय करने के लिए, पूरे के पूरे 320 रुपए आपके गल जाएंगे। यू आर लूजिंग ऑलमोस्ट 300 रुपीज। बट अगर सामने मैंने एक व्यू ले लिया कि चलिए 21,800 से 22,000 मुझे ये 200 पॉइंट की रैली में खेलना है, तो उसमें मैं क्या कर रही हूँ कि 21,800 का मैंने खरीदा है 320 में और 22,000 का 220 में मैंने बेच भी दिया है। तो मेरा प्रीमियम आउटफ्लो हो गया 100 रुपए का। अगर कुछ नहीं होता है, मान लीजिए कि अगर नीचे नहीं आता है, मेरा डायरेक्शन तो सही था लेकिन चलने में थोड़ा टाइम लग गया, तो भी मेरा जो लॉस है वो सिर्फ 100 रुपए तक ही होगा। बट अगर ऊपर चलता है तो मेरा व्यू अगर सही जाता है तो मेरा प्रॉफिट भी उतना ज्यादा बन जाता है। इसमें आप जितना ज्यादा डिफरेंस लोगे स्ट्राइक्स में, उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड और फेवरेबल होते जाएगा। तो ये सारी एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है कि स्ट्रैटेजी में हमें क्यों करना चाहिए। और इसके बाद आता है एक और स्टेप आगे, रेशियो स्प्रेड्स। तो रेशियो में तो आशु सर एक एक्सपर्ट है, आप देखते होंगे कि टीवी में भी काफी सारे स्प्रेड्स देते हैं, वो इससे भी ज्यादा बेनिफिशियल है। बट यू कैन स्टार्ट विथ द नॉर्मल स्प्रेड्स, इसको समझिए, इसमें अगर डाउट्स क्लियर हो जाए देन आप फिर आगे रेशियो स्प्रेड्स में हमारे गाइडेंस के साथ में करिए इनिशियली, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए और आगे जाके फिर आप अपने आप भी बिठा सकते हैं। सो ओवर टू यू आशु सर। थैंक यू अवनी। अवनी ने बहुत अच्छे से बताया, बहुत बेसिक बताया, बट मैं ना कुछ जार्गन्स हैं जो जनरली यूज करता हूँ और मतलब आपने कई बार सुना होगा मुझे पर्सनली मीटिंग में भी बोलते हुए और टीवी पे भी सुनते हुए। जो हम किसी भी एसेट क्लास में ट्रेड करते हैं, इक्विटी से लेके मतलब, या किसी भी एसेट क्लास में ट्रेड करते हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन ऑप्शंस। मैं इक्विटी लेता हूँ, मैं कोई भी स्टॉक लेता हूँ, मेरा एक इनफाइनाइट टाइम होती है कि कहाँ कितना बढ़ेगा मुझे नहीं पता, कब बढ़ेगा मुझे नहीं पता, कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता। सिमिलरली हम रियल एस्टेट लेते हैं, कितना बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, कहाँ तक जाएगा, कोई टाइमलाइंस नहीं है, कोई ऊपर का नीचे का प्राइस रेंज नहीं है। लाइकवाइज इवन इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, 70,000 जाएगा, 75,000 जाएगा, 1 लाख जाएगा, कब जाएगा, इनफाइनाइट रेट, इनफाइनाइट टाइमलाइंस। जो ऑप्शन ट्रेडिंग है दैट इज वेरी फाइनाइट। अगले एक हफ्ते में, अगले एक महीने में हमारे पास वीकली ऑप्शंस होती हैं, हमारे पास मंथली ऑप्शंस होती हैं। जो ऑप्शन बायर होता है वो ऑप्शन इसलिए बाय करता है कि अगले एक हफ्ते में ये होगा, और जो ऑप्शन सेलर है वो इसलिए ऑप्शन सेल करता है कि अगले एक हफ्ते में ये नहीं होगा। आज मंडे था, शायद अवनी ने कुछ कॉल्स ली होंगी कि थर्सडे को जो एक्सपायरी है वहां तक ये होगा, मैंने शायद कुछ ऑप्शंस बेची होंगी, वहां तक ये नहीं होगा। बस यही एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये बहुत सिंपल, जितनी सिंपल दिखती है उतनी ही कॉम्प्लेक्स है। ऑप्शन मार्केट की एक सबसे अच्छी बात है कि वो ऑल सीजन मार्केट है, 365 डेज। आज हम स्टॉक्स में जिस तरह से देख रहे हैं, मूवमेंट चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छा चल रहा है, एंड पीपल आर मेकिंग मनी, पर्पल पैच चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि पिछले इतने टाइम में
इतना आसान पैसा स्टॉक्स में कैसे कब बना मुझे याद नहीं आता। आई थिंक 2008 में बना होगा। बीच में ऐसे बीच में स्पर्ट्स आए हैं, बीच में ऐसे पॉकेट्स मिले हैं जब हमारे को कुछ थीमेटिकली अच्छे पैसे बने हैं। बट अक्रॉस द बोर्ड जिस तरह का PSU थीम, PSU बैंक्स, ऑयल एंड गैस, मेटल, फार्मा, कुछ भी आप उठा लो, 1-2 सेक्टर्स को छोड़ के जितने पैसे बने हैं, विच इज टू गुड टू बी ट्रू। जब ऐसा होता है तो मुझे कभी कभी डर भी लगता है, और डर लगना भी चाहिए, क्योंकि अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे किसी भी हम स्टॉक की बात करें कि एक अब पार्टिसिपेट भी करना है हमारे को उन स्टॉक्स के अंदर, हमें छोड़ना भी नहीं है। हमें लगता है कि फोमो भी हो जाता है कि हम मिस कर रहे हैं, तेजी इसी के अंदर है, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है। या तो मैं एक प्योर इन्वेस्टर हूं और मेरे पास जितने पैसे हैं मैं उन पैसों का स्टॉक्स लेके बैठ जाऊं और लॉन्ग टर्म बन जाऊं। लेकिन हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनको लेवरेज भी करना होता है। हम ब्रोकर हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, हमें ट्रेडिंग भी करनी होती है। हमें जितनी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं उतना पैसा नहीं होता, पैसा कम है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है और राइटफुली है उसको यूज करना, तो तब आता है लेवरेज। तो लेवरेज एक होता है फंडिंग लेके, दूसरा लेवरेज होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन या डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेडिंग करके। तो उस लेवरेज को कैसे यूज करना है, तो जैसे अवनी ने बोला, मैं इसमें इतना बिलीव करता हूं कि कोई भी, मैं बार बार आजकल बोल रहा हूं, जो ऑप्शन सेलर है उसके लिए पैसे बनाना बहुत मुश्किल हो गया, रिस्क बहुत बढ़ गया है। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि ऑप्शन बायर के लिए आसान है? द आंसर इज स्टिल द सेम, कि उसके लिए बहुत डेंजरस तो नहीं हुआ। मतलब वो डेंजरसली पॉइंट नहीं है जैसे ऑप्शन सेलर है कि अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। उसका लॉस लिमिटेड है, लेकिन उसके लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। और मैं ये एक ना ट्रेड आपको करके देखता हूँ। आप कल कुछ भी, आप जितने लोग यहाँ पे हैं, कल कुछ भी एक कोशिश करना, एक कोई बैंक निफ्टी की या निफ्टी की ऑप्शन कॉल या पुट खरीद लेना या बेच लेना। 90% चांस है कि लेते बेचते ही आपका लॉस शुरू हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ना हम बार बार पूछते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि मेरे लेते ही डाउन शुरू हो जाती है या मेरे बेचते ही ऊपर जाना शुरू हो जाती है। इसका आंसर मुझे भी आज तक नहीं मिला कि क्यों होता है, कैसे होता है। बट मुझे इतना डिसिप्लिन आ गया कि मुझे लेना भी है और बेचना भी है, कि मुझे अगर वो मेरे लेते बढ़ जाए तो मेरे को थोड़ा फायदा होना चाहिए, और अगर मेरे बेचते ही घट जाए तो थोड़ा फायदा होना चाहिए। इसीलिए मैं ज्यादा बिलीव करता हूं ऑप्शन स्प्रेड्स के अंदर। और ऑप्शन स्प्रेड्स क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, मैं इसका एक आंसर दूंगा। और उसके लिए अवनी ने आंसर नहीं किया कि मैं स्पेशलिस्ट हूं, मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूं। मैं सिर्फ जो ऑप्शन की एक रेंज जो बनती है, हम ऑप्शन स्प्रेड कैसे बनाते हैं, आपने नोटिस किया होगा, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं बियर स्प्रेड बना रहा हूं या बुल स्प्रेड बना रहा हूं, एक कॉस्ट होती है और एक लॉस मेकिंग पॉइंट होता है कि यहां तक मैं सेफ हूं। और मैं सेफ्टी पॉइंट कहां से निकालता हूं? थैंक्स टू अवनी एंड अदर टीम मेंबर्स, कि हम एक रेंज डिसाइड करते हैं कि अगले 3 दिन में, अगले 2 दिन में, अगले 10 मिनट में मुझे नहीं पता, अगले 1 घंटे में मुझे नहीं पता, अगले आधे दिन में मुझे नहीं पता। एंड आज हम जो वेबिनार कर रहे हैं, आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट डेज, कि 2:30 बजे तक मार्केट ऐसी थी कि सब कुछ ठीक ठाक था और कुछ टीवी के एनालिस्ट कॉल्स की बाय दे रहे थे, और 2:30 से 3:30 में मार्केट निफ्टी 150 पॉइंट नीचे आ गई देखते ही देखते। अब आप बताओगे इसका कोई आंसर दे सकता है कि आधे 1 घंटे में क्या हो गया, जिसने लिया उसका क्या हाल हुआ और जिसने बेचा वो बेच नहीं पाया या बेचते ही क्या हो गया होगा। सो ये आंसर नहीं मिल सकता। तो हम एक रेंज डिसाइड करते हैं, जो रेशियो स्प्रेड में पर्टिकुलरली बनाता हूं, कि इस टाइम फ्रेम में नेक्स्ट 2 days and 3 days, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन 30 days। इसलिए मंथली स्प्रेड बहुत रेयरली देते हैं कि अगर कोई स्ट्रैटेजी दिमाग में हो। बट एक हफ्ते का हम एक रीजनेबल एजम्पशन निकालते हैं कि इस मार्केट, इस ड्यूरिंग दिस ट्रेडिंग 3 days मार्केट किस रेंज में रह सकती है, तो उसका एक स्प्रेड बना के, एक कॉस्ट रिस्क एनालिसिस होता है, उसके बेसिस पे हम स्प्रेड बनाते हैं। टचवुड, उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता, अनलेस एक्सट्रीम कुछ 6 सिग्मा इवेंट हो जाए, रात को कुछ बहुत बड़ी चीज हो जाए, या फिर जो इंट्राडे मूवमेंट्स है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। कोई चीज भाग के नहीं लेनी, भाग के नहीं बेचनी, क्योंकि अगर लेनी है तो बेचनी है तो लेनी भी है। सो आई थिंक ये एक रैशनल है कि हम स्प्रेड्स क्यों बनाते हैं, व्हाई आई मेक स्प्रेड्स। एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी डेरिवेटिव्स मार्केट के ऊपर सेबी की, कि 90% लोगों का लॉस हुआ है इस मार्केट के अंदर। वो रिपोर्ट बिल्कुल करेक्ट थी। बट ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, एंड आई एम पुटिंग माई हैंड ऑन माई हार्ट, अगर मैं अपने ब्रांच में या अपने जेम में देखता हूँ, तो आई थिंक 80 to 90% पीपल हैव मेड मनी, दे आर इन प्रॉफिट। तो मुझे ये क्वेश्चन बड़ा अजीब लगता है ये सोच के कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं, एंड दिस कुड बी ट्रू विद अदर ब्रोकिंग हाउसेस आल्सो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ जेएम में, हमारे क्लाइंट्स में 75% 80% ने पैसे बनाए हैं, और जो डेरिवेटिव रिपोर्ट कह रही है वो 90% लोगों ने लॉस किया। तो व्हाट इज दी ये कोरिलेशन क्या है? तो इसकी कोरिलेशन की जो मेरी स्टडी है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उस रिपोर्ट में एक चीज था कि 90% जो पैसे जो लोगों के गए हैं, उनका एवरेज टिकट साइज था 1 लाख रुपए। तो मैं ये सिंपल बोलता हूं कि जो लोग सिर्फ थोड़े से पैसे लेके आते हैं, क्योंकि उनके लिए मार्जिन देना मुश्किल होता है,
उनके लिए मार्केट बहुत मुश्किल है. इफ यू थिंक प्लेन वनीला बाइंग से पैसे बन जाएंगे, पैसे नहीं बनेंगे. बट अगेन सामने कहेंगे प्लेन वनीला सेलिंग से बन जाएंगे, नहीं, प्लेन वनीला सेलिंग से भी नहीं बनेंगे. सो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज व्हिच फ्रॉम टाइम टू टाइम our derivative desk led by Avni and other team members keep sharing with you. और मेरी sincere और earnest request है आप लोगों से कि आप उन strategy को use करिए. चाहे एक lot trade करिए, आपको लर्निंग होगी. सब लोग कहते हैं कि कोई बुक बताओ लर्निंग के लिए, कोई कोर्स बताओ लर्निंग के लिए. आप लोगों ने डिफरेंट टाइम्स में बहुत सारे कोर्सेज अटेंड किए होंगे, क्लासेस अटेंड की होंगी, पैसे स्पेंड किए होंगे. मैं कहता हूँ कुछ स्पेंड करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आप अगर एक एक लॉट में ट्रेड करने लग जाएंगे, दैट विल बी द बिगेस्ट लर्निंग. एंड आई कैन बेट माई लाइफ आफ्टर यूजिंग दीज ऑप्शन स्ट्रैटेजीज फॉर 2 months or 3 months, you will be in a much better place and your understanding and knowledge would be much vast. तो मैं आपको सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ सारे ऑप्शन ट्रेडर्स को कि आप अब अभी कहेंगे हम कैसे करें, हमें पता नहीं है. मैं तो कह रहा हूँ सिंपली ब्लाइंडली फॉलो करो. हैव फेथ. कुछ भी करने के लिए आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, किसी पे ट्रस्ट करना पड़ेगा. अवनी पे करना पड़ेगा, सोनी पे करना पड़ेगा, राहुल पे करना पड़ेगा. बट जो भी स्ट्रैटेजीज देता है आप उन पे ट्रस्ट करके आप ट्रेड एक एक लॉट करके देखिए. इफ नॉट एनीथिंग एल्स, डू इट फॉर लर्निंग. मैं तो फ्यूचर का स्टॉक भी जो लेता हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल बीपीसीएल, परसों अगर आप लोग बहुत वॉच कर रहे होंगे, बीपीसीएल 510 रुपए पे था और आज 590 रुपए, 80 रुपीज मूव इन 2 days. तो इतने कॉन्फिडेंस के बाद भी क्या मैं फ्यूचर नहीं ले सकता था? मैंने फिर भी मना करता हूं कि फ्यूचर नहीं. मैं इन द मनी कॉल लेता हूं 490 की, 500 की. आई एम रेडी टू पे सम प्रीमियम कि मुझे रात को मेरे को और मेरे क्लाइंट को नींद आराम से आए कि मेरे को अनलिमिटेड लॉस नहीं हो सकता. अनलिमिटेड लॉस इज द मोस्ट मतलब डिफिकल्ट थिंग टू हैंडल इन दिस मार्केट. मैं उसका एग्जांपल देता हूं. लेट्स नॉट टॉक अबाउट एनी स्टॉक, और मतलब ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, एक आरईसी की मैं बात बताता हूं आपको. आरईसी कुछ महीने पहले 130 रुपए का स्टॉक था, आज 500 रुपए है. अब 130 रुपए पे कितने इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने 130 का आरईसी लेके बिल्कुल भूल गए, स्क्रीन से हटा दिया, नहीं किसी के पास नहीं होगा. लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इंटरमिटेंटली पैसे बनाए होंगे. 150 का लेके 200 में बेचा होगा, 250 का लेके 300 में बेचा होगा, 350 का लेके 400 में बेचा होगा. सो इफ वन फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, आउटसाइडर, अगर आज 500 रुपए की वो चीज 400 रुपए आ जाए, तो ऊपर से कहां 100 रुपए नीचे, नीचे से कहां 250 रुपए ऊपर, कुछ नहीं बिगड़ा. लेकिन वो 100 रुपए मेरे और आपके ट्रेडिंग के सारे पैसे लेके जा सकता है. एंटायर कैपिटल कैन बी वाइप्ड आउट, और इफ नॉट कैपिटल, मेरा सारा प्रॉफिट जा सकता है. इसीलिए ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को मैं स्टॉक्स में भी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को यूज करता हूं. सॉरी, आई मिस्ड वन पॉइंट. जो मार्जिन की मैं बात कर रहा था, मैं बहुत रूड तरीके से और बहुत ही मतलब रॉ तरीके से ये वर्ड बोलता हूं कि डेरिवेटिव्स एक ऐसी मार्केट है जो अमीर को और अमीर बना सकती है, गरीब को अमीर नहीं बना सकती है. तो जो कोई भी डेरिवेटिव में ये सोचता है कि मैं कम पैसे लेके आऊंगा और मैं ज्यादा पैसा लेवरेज करके बनाऊंगा, तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि नहीं हो सकता. दिस इज द बिगेस्ट मंत्रा ऑफ माय लर्निंग इन द लास्ट फ्यू इयर्स इन दिस डेरिवेटिव मार्केट, कि पैसा ही डेरिवेटिव मार्केट में पैसे को बना सकता है. बिना पैसे के डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड नहीं करना. देन आई कीप सेइंग कि नाल्को, सेल, जो मैं बार बार स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ, मेटल, सीमेंट, पावर, टाटा पावर, जितने आपके पास पैसे हैं आप डिलीवरी उठा के रख लीजिए. अदरवाइज आपके पास वो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए अगर आपको लेवरेज करना है तो वो स्किल और वो पैसे जरूर होने चाहिए. अगर पैसे नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल है डेरिवेटिव मार्केट में पैसे बनाना. देयर इज नो शॉर्टकट टू मनी. मार्जिन का कोई शॉर्टकट नहीं है. एंड आई कीप सेइंग वन थिंग, लॉस इज अनहेल्दी, मार्जिन इज हेल्दी. मतलब पैसे बहुत जरूरी है, मार्जिन. इसीलिए हमने ये जो एनालिसिस किया, और जो 90% जो लोगों ने पैसे जो लॉस किया था डेरिवेटिव मार्केट में एज पर सेबी रिपोर्ट, आई हैव नो डाउट्स इन शेयरिंग विद यू कि उसमें से 90% ये जो डिस्काउंट ब्रोकरेज एप्स हैं, जीरोदा, ग्रो, अपस्टॉक, जिनमें ये न्यू जनरेशन, जेनजी या कुछ नए नए लोग हैं जिनको लगता है कि गेम है, 50,000 लाख रुपए की ऑप्शन लेंगे, उन लोगों ने पैसे कमाए हैं. सीजन ट्रेडर्स ने नहीं कमाए हैं. बट सीजन ट्रेडर्स के बीच में और इन न्यूबीज के बीच में बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं who believe in advisory, and that is why they are with the broking houses like JM or Motilal or Kotak, or it could be anyone. I'm not saying that we are the only one. I can boast and say that we are one of the best as far as advisory is concerned. But again, with all due regards, we are not the only one. There are other also. तो मैं एक चीज और इंसिस्ट करता हूँ कि आप ब्रोकरेज, डिस्काउंट ब्रोकरेज के लिए नहीं जाएं, आप एडवाइजरी के लिए जाएं, किसी की भी यूज करें. एंड दैट इज हाउ यू विल लर्न डेरिवेटिव्स. मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं. आई कैन गो ऑन एंड ऑन डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में. मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, आई विल ट्राई टू आंसर. और मैं एक और चीज को मानता हूं, समहाउ आप लोगों ने मुझे सुना होगा कि मैं डेटा को
या मैं भी कोई जो ऑब्वियस चीज होती है ना, समथिंग विच इज ऑब्वियस, कि जो चार्ट सब देख सकते हैं, जो डेटा इंटरप्रिटेशन सीधी है कि अगर ये पीसीआर 1.5 से ऊपर हो तो ऐसे होता है, पीसीआर 1 से नीचे हो ऐसा होता है. आई थिंक वी हैव टू राइज अबव दिस ऑल्सो. दिस मार्केट डायनामिक्स आर चेंजिंग. दिस इज एवर इवॉल्विंग मार्केट. देयर इज समथिंग कॉल्ड स्मार्ट मनी. वो मुझे स्मार्ट मनी नहीं पता कौन है. इट कुड बी एफआईआईज, इट कुड बी, पहले जमाने में हम ऑपरेटर्स बोलते थे जब स्टॉक्स होते थे कि वो ऑपरेटर है, किसी को हम बोलते थे कि नहीं वो कोई बड़ा एचएनआई है. सो आई डोंट नो व्हाट डू यू कॉल देम. सो आई हैव गिवन देम द टर्म स्मार्ट मनी व्हिच इज डेफिनेटली स्मार्टर देन मी, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे सामने कोई ऑपोजिट कर रहा है. डेरिवेटिव्स हो या स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेड हो, ट्रेड तो मैच होता है. अगर 1 लाख कॉल किसी ने ली है तो 1 लाख कॉल किसी ने बेची भी है. तो हम जब ओवरबॉट और ओवरसोल्ड बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि वो 90,000 किसी ने ली है या 90,000 किसी ने बेची है. जो 10 है, 10 वाला है, वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है, उसको उन 90 लोगों से ज्यादा पता है. सो आई डोंट नो व्हाट आर दे डूइंग. सो वी ट्राई टू गेट इनटू दैट स्टडी कि व्हाट इज दैट स्मार्ट मनी डूइंग. दुनिया भर के आशु जो मुझ जैसे ऑर्डिनरी लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त मार्केट देख के, वो स्क्रीन देख के, पीसीआर डेटा देख के क्या सोच रहे हैं. मैं कोशिश करता हूं कि हमें उससे उल्टा करना चाहिए, क्योंकि जो सब सोच रहे हैं तो सब पैसे बनाएंगे. तो अगले साल डेरिवेटिव की रिपोर्ट आएगी कि 90% पीपल हैव मेड मनी इन दिस मार्केट एंड ओनली 10% हैव लॉस्ट मनी. बट वो कभी नहीं हो सकता. एट बेस्ट द सिचुएशन विल बी 50 हैव मेड मनी एंड 50 हैव लॉस्ट मनी. इन 90 मेक मनी एंड 10 लूज मनी. ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है. सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स which Avni is very good at, and we keep interacting on almost daily basis, hourly basis, कि market क्या लगता है, कैसे करना चाहिए. So again, coming back to the point, if and particularly people in east and south जहाँ पे options का usage बहुत कम है, and I think अभिजीत के clients और अभिजीत के business partners कुछ कोलकाता में भी हमारे साथ नए ज्वाइन किए हैं. तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी स्ट्रैटेजीज एक लॉट यूज करिए. आपको आइडिया लग जाएगा कि स्ट्रैटेजीज है, उस आइडिया से लर्निंग आएगी, और लर्निंग से आप in due course of time हमसे ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे. जस्ट टू इंटरप्ट आशु सर, कि आप अगर बाहर कोई भी डेरिवेटिव्स का कोर्स करने जाते हैं, आपको कोई अच्छा बेनिफिशियल कोर्स कम से कम 20-25 हजार के नीचे नहीं मिलेगा. उसके नीचे कुछ भी मिल रहा है वो बहुत थियोरेटिकल होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा. बेहतर ये है कि जैसे आशु सर बता रहे हैं कि आप एक लॉट से ट्रेड करिए जिसमें मार्जिन आपको लग रहा है 7,500-8 हजार का, आपका प्रॉफिट लॉस फिक्स्ड होता है. एंड put that, I mean consider that as your cost of learning. कि अगर आपने खुद के पैसे एक बार लगा लिए मार्केट में तो आपका ध्यान भी बहुत ज्यादा रहेगा, और कैसे मूवमेंट हो रहा है, क्यों गलत जा रहा है, क्यों सही जा रहा है, इसमें आपका ध्यान बहुत ज्यादा होगा और उसमें लर्निंग ज्यादा होगी. सो पुट इट एज ट्रेड इन वन लॉट, गो फॉर फिक्स्ड लॉस स्ट्रेटेजीज जिसमें आपको पता है कि मेरा मैक्सिमम नुकसान इतना ही हो सकता है, एंड कंसिडर दैट एज योर कॉस्ट ऑफ लर्निंग. जो शायद आप अगर बाहर कहीं कोर्स के लिए पे करते, उसमें आपको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज मिलता, इसमें आपको प्रैक्टिकली आपका खुद का ट्रेड देखने मिलेगा और समझने ज्यादा मिलेगा. यस सर. ओके, सो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं. आई थिंक आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स अबाउट डेरिवेटिव्स. बट जनरल मार्केट में भी मैंने कहा था कि वी विल कवर इट. देयर इज वन क्वेश्चन कि वेयर इज द मार्केट हेडेड इन द नेक्स्ट 1 ईयर. सो आज की डेट में अगर मुझसे कोई मार्केट की बात करता है ना, तो मार्केट में बोलता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? इंडेक्स, स्टॉक्स, और उस इंडेक्स में भी बैंकिंग या निफ्टी के कंपोनेंट्स. सो आई थिंक ये मार्केट ना बिल्कुल डिफरेंट बकेट्स में बन गई है. एंड आई वुड रिक्वेस्ट अवनी टू ऐड वंस आई कंप्लीट ऑन दिस मार्केट थिंग ऑल्सो, कि ये जो मार्केट है ना, होलिस्टिक बात नहीं कर सकते. मैं पिछले 20-25 साल से एक टर्म यूज करता रहा हूँ ड्यूरिंग अवर कॉन्वर्सेशन, कि जो स्मार्ट मनी है, इंडेक्स दिखा के स्टॉक्स की डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है. हम देखते थे कि मार्केट बढ़ती जा रही है, और ये सबके साथ हुआ है. जो लोग हैं जो 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, आप लोगों में से बहुत सारे ये एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि इंडेक्स बढ़ता रहता था, मार्केट अच्छी दिखती थी, मेरे स्टॉक्स नहीं बढ़ते. आई थिंक इन द लास्ट 25-30 ईयर्स फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग, स्टॉक्स बढ़ रहे हैं और इंडेक्स नीचे जा रहा है. मतलब रिवर्स हो रहा है, इंडेक्स दिखा के स्टॉक्स दिखा के इंडेक्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है. तो इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, मिड कैप पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, पेनी स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, ऐसे भी बढ़ रहे हैं, और इंडेक्स में इतने बड़े बड़े डिप आ जाते हैं.
क्योंकि उसका एक रीजन है कि ये जो बड़े बड़े ऑप्शन ट्रेडर्स मार्केट में आ गए हैं एंड हु थिंक दैट इट इज वेरी इजी मनी टू मेक मनी इन दिस मार्केट थ्रू ऑप्शंस, वो इस मार्केट में कोई भी सेक्रेट मॉडल नहीं है, कोई भी ऐसा पक्का मॉडल नहीं है कि यही तरीका से पैसे बन सकते हैं। मैं आपको एक एमेच्योर सिग्नल देता हूं, जो इजी मनी सिंड्रोम बन जाता है या जो एक मेरी लैंग्वेज में पान वाला भी ट्रेड करने लग जाता है ना कि यही ट्रेड है, यही करना चाहिए, दैट मीन्स वो स्टोरी ओवर होने वाली है। सो जो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन के एक साल में मार्केट क्या लग रही है, मार्केट स्टॉक्स अलग हो गए हैं, सेक्टर्स अलग हो गए हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी अलग हो गई है। जितने बड़े बड़े लोग टीवी पे आते हैं, इफ यू लुक एट टॉक टू द फंड मैनेजर्स, व्हाट इज योर व्यू ऑन द मार्केट, वेयर आर यू इन्वेस्टेड, वी आर पॉजिटिव ऑन फाइनेंशियल्स, वी आर ओवरवेट ऑन फाइनेंशियल्स, वी लाइक बैंकिंग स्टॉक्स, विदाउट बैंकिंग मार्केट कैन नॉट वर्क एंड मार्केट हैज प्रूव्ड कि बैंक्स के बिना ही, मतलब पीएसयू प्राइवेट बैंक के बिना ही मार्केट चल रही है और मार्केट कहां से कहां पहुंच चुकी है। अब इस लेवल पे हमें क्या करना चाहिए? मेरा स्ट्रांगली मानना है इतना इजी मनी जब आया है, इट इज ओनली ए मैटर ऑफ टाइम। एक बड़ा झटका मार्केट में जरूर आया है, अब वो झटका मार्केट में आए या स्टॉक्स में आए, इंपॉर्टेंट इज जो मैंने आरईसी का एग्जांपल दिया कि स्टॉक 350 रुपए बढ़ गया, शायद मैंने इतने पैसे नहीं बनाए, लेकिन 350 रुपए में अगर 100 रुपए भी वो स्टॉक घट गया तो मेरे पैसे ज्यादा चले जाएंगे। और दूसरा, जब भी मेरा ये पैसा ऐसा बन रहा होता है, 10 का 100, 100 का 1000, 1000 का 10,000, 10,000 का लाख बन रहा है, जब मेरा 20% प्रॉफिट ऊपर से निकल जाना चाहिए, मुझे नहीं पता वो ऊपर क्या है, आई डोंट नो व्हाट इज ऊपर, देयर कुड बी स्टिल लॉट ऑफ ऊपर लेफ्ट, बट जब मेरा 15 to 20% जो इजी मनी प्रॉफिट आ रहा था ऊपर से निकल जाए, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फर्स्ट सिग्नल कि मुझे अपना पोर्टफोलियो रिड्यूस कर लेना चाहिए। फिर उस रिडक्शन में ये नहीं सोचना चाहिए कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ये आशु ने बोला है, ये किसी फंड मैनेजर ने बोला है, ये टीवी पे बोला है, ये तो मेरी ऐसी होल्डिंग है, वैसी होल्डिंग है, डिफरेंट थॉट्स विल क्रॉस अवर माइंड, बट आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट डिसिप्लिन। जो पैसा घर चला जाएगा स्टॉक्स में, वही स्टॉक, वही पैसा आपका अपना है, नहीं तो आप यहीं के यहीं आप अपना पैसा खो देंगे और बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी इस मार्केट में ना, ये मार्केट हमारे को हैबिचुअल करती है, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, एक और स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा हूं, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट के बाद कोई भी स्टॉक बेचूं और बेचते ही लगे यार रिग्रेट हो जाए, होता है ना फियर ऑफ मिसिंग आउट, और ये होता है कि मतलब दिस इज समथिंग डिफरेंट कि यार रिग्रेट ऑफ मिसिंग आउट कि नहीं मैंने क्यों बेच दिया, ये और प्रॉफिट बनता। जब ये रिग्रेट आने लग जाएगा ना, दिस इज ऑल्सो अनदर सिग्नल कि रिग्रेट्स बहुत हो रहे हैं कि नहीं यार कुछ भी नहीं बेचना। तो ये एक ऐसा सिग्नल है जो इस वक्त मार्केट में चल रहा है, और जरूर इसका, मैं आज ये वेबिनार कर रहे हैं ना, ये डेट याद रख लेना, जरूर करेक्शन आएगा। मैं मार्केट का क्रैश नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट में स्टॉक्स में जरूर ऐसा करेक्शन आएगा, वेयर ऑब्वियसली एवरीवन विल से कि नहीं यार वो बात हो रही थी, रेलवे थीम, डिफेंस थीम, सब थीम बहुत अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है। मैं खुद टीवी पे बार बार आके मेटल सीमेंट पावर बोले जा रहा हूँ, और अभी भी बोल रहा हूँ कि चाइना इतना खराब हो रहा है, चाइना में नेक्स्ट क्यू आएगी तो मेटल स्टॉक्स में अभी भी बुलिश हूं और बढ़ जाएंगे। नॉट दैट वी आर नॉट बुलिश, बट ऑल आई एम सेइंग इज इन दिस बुलिशनेस, इन दिस कॉम्प्लेसेंसी, वन शुड in this move one should not be complacent. Protection of profit is the most important thing. एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आया हुआ है, व्हाट इज द बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी? तो पार्टली तो मैंने आंसर कर दिया व्हाट इज द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, और पार्टली ऑप्शन में वो स्ट्रेटेजी है, कोई भी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी हो जिसमें मेरा अनलिमिटेड लॉस नहीं होना चाहिए, दैट इज द ओनली एंड द बिगेस्ट रिस्क मैनेजमेंट। मेरा पैसा ऑप्शन का कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी हो, कैलेंडर हो, बटरफ्लाई हो, आयरन कॉन्डो हो, कुछ भी ऐसा बनाएं, ये नाम बड़े आपको लग रहे होंगे, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप काम करेंगे तो हम उसमें आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। मुश्किल चीजें हो सकती हैं, लेकिन अनलिमिटेड लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट जरूर होंगे। एक्सीडेंट पेटीएम में भी हुआ, एक्सीडेंट इससे पहले कौन सा स्टॉक था जिसमें रिजल्ट आए, तो इन्फोसिस में एक्सीडेंट हुआ, HDFC बैंक एंड कमिंग, सॉरी मैं एक पॉइंट मिस कर गया जो बीच में मैं बोल रहा था कि मार्केट कैसे बढ़ गई। मार्केट बन गई जैसे क्रिकेट में है ना, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर लेजेंड है, युवराज सिंह लेजेंड है, और देयर आर सो मेनी बिग प्लेयर्स, धोनी भी अब लेजेंड हो गया है, लेकिन वो करंटली रन नहीं बना रहे। रन यशस्वी जायसवाल बना रहा है, शुभमन गिल बना रहा है, रिंकू सिंह बना रहा है। तो ये जो PSU स्टॉक्स हैं, अब लोग क्या पकड़ के बैठे हैं, HDFC बैंक क्योंकि वो पुराना लेजेंड है, बजाज फाइनेंस पुराना लेजेंड है, ITC पुराना लेजेंड है, या इन्फी या मे बी अदर स्टॉक्स पुराने लेजेंड्स हैं, उनमें पैसे नहीं बन रहे। उनको अगर आपने होल्ड करके रखा हुआ है तो वो आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, और वही है जो इंडेक्स को नीचे ला रहे हैं। स्टॉक्स बढ़ रहे हैं और इंडेक्स नीचे आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? इसी वजह से आ रहा है। सो दिस यू कैन नॉट रिमेन पैसिव विद योर पोर्टफोलियो कि नहीं यार ये तो पुराने अच्छे स्टॉक्स है, एशियन पेंट है, उसमें पैसे नहीं बन रहे हैं।
पैसे डिफरेंट न्यू थीम्स के अंदर बन रहे हैं. सो वन हैव टू अडैप्ट एंड इवॉल्व इन द न्यू थीम्स ऑल्सो. दिस इज वेयर अगर आप मुझसे पूछेंगे मार्केट क्या लग रही है, क्या बोलूं मार्केट, अभी आप मार्केट मुझसे एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस पूछ रहे हैं, या मुझसे आप पीएसयू बैंक्स पूछ रहे हैं, या मुझसे पीएसयू स्टॉक्स पूछ रहे हैं, या मेटल्स हैं, सब डिफरेंट डायरेक्शन में चल सकते हैं. दैट इज द रीजन कि नाउ दैट क्वेश्चन to ask market क्या लग रही है and for me to answer market क्या लग रही है is very difficult. So we have to get into the different segments of the market. मार्केट क्या लग रही है अगले 3 दिन के लिए, हो सकता है ऑप्शन ट्रेड पूछ रहे हो कि कहां तक जा सकती है, मैं ऑप्शन बेचूं के लूं, या किस सेक्टर में मुझे बनाना है. सो मार्केट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट एंड दैट इज व्हाई एंड द रिस्क मैनेजमेंट इज कि मेरे को किसी भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी में अनलिमिटेड लॉस नहीं होना चाहिए था. हैविंग सेड दैट, रेशियो स्प्रेड्स में अनलिमिटेड लॉस होता है, लेकिन थैंक्स टू अपनी पिछले 4 साल में अभी हमारा कोई भी ऐसा रेशियो स्प्रेड नहीं है जिसमें अनलिमिटेड लॉस हुआ हो. एक में शायद थोड़ा सा हिकअप आया था जब यूक्रेन वॉर हुआ था, क्योंकि वो भी पुट साइड पे जिसका था तो उसका हुआ था. अदरवाइज ऐसा कोई भी हमारी लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी नहीं होती. और हमारे डेरिवेटिव डेस्क से जितनी भी स्ट्रैटेजीज निकलती हैं 99% अनलिमिटेड लॉस वाली होती ही नहीं है, कभी नहीं हो सकती. राइट अवनी? कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती दैट इज द ऑन द कॉन्ट्ररी 1:2 रेशियो स्प्रेड में फिर भी एक चांस होता है, लेकिन डेरिवेटिव डेस्क से जो भी स्ट्रैटेजी निकलती है उसमें कभी कोई लॉस नहीं होता. एंड इफ एट ऑल जो रिस्की ट्रेडर्स है, जिनका रिस्क एपेटाइट काफी ज्यादा है और जो रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो उनके लिए भी एक क्लियरली लिखा हुआ होता है कि दिस इज ओनली फॉर रिस्क टेकर्स एंड दीज आर रिस्की स्ट्रेटजीज विद अनलिमिटेड प्रॉफिट्स. वो एक डिस्क्लेमर साथ में होता ही है, ब्रैकेट में हम बकायदा लिख के बेचते हैं कि ये सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स के लिए है who are ready to take that kind of risk. अदरवाइज जो नॉर्मल स्ट्रैटेजीज होती है जिनमें एक लेग बाइंग का होता है, एक लेग सेलिंग का होता है, तो वो सारी स्ट्रैटेजीज फिक्स्ड लॉस होती है या मिनिमल लॉस वाली स्ट्रैटेजीज होती है. नाउ आशु सर, विद योर परमिशन, देयर इज वन क्वेश्चन ऑन कैलेंडर स्प्रेड्स. सो हाँ जी प्लीज. जी, अंकित जी पूछ रहा है कि आप कैलेंडर स्प्रेड में आप 21,600 का पुट करंट एक्सपायरी की सेल है और नेक्स्ट एक्सपायरी की बाय है. So Ankit, in calendar spreads also, again ये एक बहुत theoretical concept है कि आपको current expiry जो नजदीक की expiry है वो बेचना है and दूर की expiry है उसमें buy करना है. अब market इतना ज़्यादा dynamic हो चुका है कि that you have to keep modifying your strategies. तो हम calendar spread करते हैं but with a small modification. Now that modification could be either in the form of a different strike or it could be in the form of a different quantity but not the same quantity. अब इसमें होगा क्या कि अगर for next 1.5 weeks तक अगर 21,700 और 21,800 में अगर फंसी रही, तो आपने जो बाय की है मंथली एक्सपायरी की 21,600 की पुट, उसका भी प्रीमियम इतना ही ज्यादा गलते जाएगा, डेप्रिशिएट होते जाएगा, एंड वहां पे आपने ज्यादा पे किया है बाय करने के लिए, तो उसमें प्रीमियम खोने के लिए बहुत ज्यादा है और यहाँ कमाने के लिए बहुत कम है. तो हो सकता है कि आपका व्यू सही हो, 21,600 के नीचे ना जाए मार्केट, तो भी अब आप प्रॉफिट में नहीं निकल पाओगे. तो इसमें व्हाट मॉडिफिकेशन यू कैन डू इज कि व्हाटएवर प्रीमियम यू आर सेलिंग फॉर द करंट एक्सपायरी, उतने ही प्रीमियम का या उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम जो भी स्ट्राइक में आपको मिलता है उस स्ट्राइक को आप बाय कीजिए. could be 21,400 put for the monthly expiry or 21,300 put. This is one way of handling it. Another way is कि आपने 21,600 की पुट 5,000 अगर बेची है करंट एक्सपायरी के लिए, तो अब मंथली वाली जो बाय कर रहे हैं उसका प्रीमियम इतना जल्दी फास्ट डिप्रिसिएशन होने वाला नहीं है, तो उसमें आप बाइंग क्वांटिटी थोड़ी सी कम कीजिए. तो या तो आप स्ट्राइक चेंज कीजिए या आप क्वांटिटी चेंज कीजिए, बिकॉज ये सेम क्वांटिटी में देयर इज अ वेरी हाई रिस्क कि आपका दोनों नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी का भी प्रीमियम बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हो जाए और आप प्रॉफिट में ना आए. So एक क्वेश्चन और है कि which strike price to choose to make the spread. There is no thumb rule. It again depends on the range के अगले 3 या 4 दिन या इस हफ्ते की रेंज क्या मार्केट में लग रही है. Whether it is 1:2, 200 points safe, 250 points या 300 points. That depends on the data
through which we interpret that what is the likely range to be in this market and what is the safe zone. So basis safety, there is no thumb rule कि हर बार 1:2 स्प्रेड बनेगा, वो 200 पॉइंट के गैप में बनेगा या 300 में बनेगा. हमने 400 में भी बनाया बजट पे जब वॉलिटिलिटी ज्यादा थी, प्रीमियम्स आई थे, तो 400 पॉइंट का भी स्प्रेड बनाया. एक और क्वेश्चन है कि फ्यूचर बेटर है या ऑप्शन बेटर है. मैं पर्सनली हमेशा बोलता हूँ कि ऑप्शन बेटर है. फ्यूचर में आप कुछ भी कर लें, मैं हमेशा एक टर्म बहुत अगेन यूज करता हूं विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. फ्यूचर का सौदा लॉस से नहीं कटता, अनलिमिटेड लॉस के डर से कटता है. क्योंकि जब भी हमने कोई भी चीज ली या बेची और सौदा अगर हमारे फेवर में अगेंस्ट चला जाता है, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए लॉट साइज के, तो जब उसमें ऐसा मार्केट का माहौल बनता है, दिखता है कि पता नहीं ये तो कुछ भी हो जाएगा, मेरा सौदा कट जाता है. लेकिन अगर वही चीज मैंने ऑप्शन से ली है, मैं इन द मनी ऑप्शन से रिप्लेस करता हूँ, थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा जरूर देता हूँ, लेकिन जब मुझे ये नींद आराम से आती है कि मेरा अनलिमिटेड लॉस नहीं हो सकता, मुझे सौदा नहीं कटता. तो मैं अगर रॉन्ग हो गया हूँ तो ऑप्शन में मेरा लॉस होगा. लेकिन अगर मैं टेम्परेरीली रॉन्ग हो गया हूँ, एंड में राइट हो गया हूँ, तो मेरा ऑप्शन में लॉस नहीं होगा. बट फ्यूचर में जरूर लॉस होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो डर है अनलिमिटेड लॉस का, वो हमारा सौदा कटवा देगा. तो इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई प्रेफर ऑप्शन ट्रेड and I replace future with buying or selling deep in the money option, so that I replace it with future, and I know in my mind and in my calculation कि this is the worst case scenario. और उसकी जब हम कॉस्ट पे करते हैं, ऊपर का कॉल बेच के कम भी कर सकते हैं. So this is where strategies come into play. अब for example BPCL का हमने 510 का एक कॉल लिया, 540 का बेचा, पैसे आए. BPCL और बढ़ गया, फिर हमने 530 का एक लिया, 570 का बेचा, तो भी पैसे आए. अब टुडे BPCL वाज 578 रुपीस. आज भी मुझे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एंड आई एम गिविंग दिस एज ए कॉल आल्सो, आज भी मुझे 578 पे BPCL अच्छा लगता है कि अगले कुछ दिनों में 600 भी क्रॉस कर जाएगा, जिस तरह की मूव है, ऑयल एंड गैस चल रहा है. तो मैं क्या करूं, अगर मैं तो फ्यूचर लेके 10-10 रुपए बुक करता रहूं, तो हमने 570 की कॉल ली, कितने में, 23 रुपीस में. 610 की कॉल 10-11 रुपीस में बेच दी. कॉस्ट क्या आ गई, 23 माइनस 10, 13 रुपए. 570 प्लस 13, 583. एज गुड एज फ्यूचर. फ्यूचर का भाव क्या था, 578. सो वी कैन कीप रोलिंग दिस बुल स्प्रेड ऊपर ऊपर ऊपर, अगर मेरे को कन्विक्शन है. लेकिन फ्यूचर में अगर यही 578 वाला BPCL 3 दिन या 2 दिन में भी, या किसी बैड न्यूज से 550 आ गया, मेरा तो सौदा कट जाएगा फ्यूचर का. और उसके बाद जब 600 हो जाएगा, देन आई विल रिग्रेट कि नहीं, मैंने नहीं रखा. लेकिन जब मेरा पास डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी है कि मेरा लॉस 13 रुपए से ज्यादा हो नहीं सकता, आई कैन कीप होल्डिंग एंड वेट कि अभी तो एक्सपायरी में बहुत टाइम है, ये टेम्परेरीली 2 दिन की बैड न्यूज है. सो दैट इज व्हाई टू आंसर के फ्यूचर्स या ऑप्शंस करना चाहिए. आई एम ए वेरी बिग फैन ऑफ ऑप्शंस, एंड आई कैन रिप्लेस फ्यूचर्स विद ऑप्शंस. नॉट दैट कि स्ट्रैटेजी बनानी है, सिंपल वनीला भी लेना है तो ऑप्शन इज बेटर बिकॉज इट गिव्स यू कंफर्ट. Sectoral view, as I've already shared के metal, cement, power, we are still bullish, but beyond a point, irrespective of any stock, one has to be very very careful. जो लास्ट लेग ऑफ रैली होगी, वो इतनी सक्कर भी बन सकती है कि आपको इतना इजी और पैसा देगी, और एक एक 2-2 लॉट भी बहुत पैसा ले सकते हैं. सो लाइक आई से, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी. बट इसमें मैं ये सिर्फ ये बोलूंगा, पैसा जाना नहीं चाहिए. डू वॉट एवर इट इज पॉसिबल, एंड इवन इफ दैट मीन्स फियर, यू हैव टू बी फियरफुल. देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म. एंड अभी मेरे को एक और भी बहुत रिक्वेस्ट आती है, और अभी भी आई है, कि डेली स्प्रेड होना चाहिए. Unless there is a conviction trade, unless there is a trade with a credible conviction, only then the trades will come. For the sake of trading, we don't give trades. कि नहीं, मुझे रोज निफ्टी की स्ट्रैटेजी देनी है. यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, बहुत सारे एनालिस्ट हैं बाजार में, जो 10-10, 15-15 पॉइंट निफ्टी में देते हैं. मतलब आज की डेट में अगर आप लोएस्ट भी ब्रोकरेज चार्ज करें, तो कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग है निफ्टी फ्यूचर 10 रुपए से ज्यादा की हो जाती है. तो पता नहीं 15-15, 20-20 रुपए में ये कैसे स्ट्रैटेजी देते हैं. और 50-50 रुपए निफ्टी और 100 पॉइंट बैंक निफ्टी 5-5 मिनट में इधर उधर हो जाता है. तो वी डोंट बिलीव इन दीज डेरिवेटिव फ्यूचर स्ट्रैटेजीज इन फ्यूचर्स, कि जहां पे 10-20 रुपए का ये नहीं होगा. कंपल्सिव ट्रेडिंग नहीं होगी. जब स्प्रेड समझ आएगा, कन्विक्शन होगी, तभी स्प्रेड देंगे, नहीं तो नहीं देंगे. और उस स्प्रेड के साथ पूरा रैशनल दिया जाएगा कि क्या रैशनल है, क्या कोई भी स्ट्रैटेजी के साथ रैशनल जरूर होगा. सो दिस इज अगेन वन थिंग विच वी कैनॉट कमिट के नहीं दिन में 4 ट्रेड ही आएंगे, 2 आएंगे. एंड आई डोंट हैव एनी, मतलब नन ऑफ अस हैव एनी क्वाल्म्स अबाउट सेइंग कि मार्केट अभी समझ नहीं आ रहा. कोई कन्विक्शन ट्रेड नहीं है,
कोई क्रेडिबल ट्रेड नहीं है, एंड देयर इज नो हार्म। मेरे को कोई ऐसा नंबर नहीं बढ़ाना है, किसी टीम को कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है टीम पे कि नहीं टीम को 10 कॉल रोज निकालनी है तभी उनका KRA पूरा होगा। देयर इज एब्सोल्युटली, देयर आर डेज व्हेन देयर आर 20 calls, there are days when there will be 2 calls or only updates, there will be no calls. So that is another discipline which JM adopts, that there is no compulsory trading. Okay, now there are a lot of queries on currency options. तो currency के लिए हमारे दूसरी एक टीम है जो currency and commodities ही देखती है. तो I think we can arrange for a webinar with the currency guy also. And yeah, option के जो rules है वो more or less currency में भी similar होते हैं, लेकिन एक currency का dynamics अलग होता है. We are more into equity right now, so we'll get you in contact with the currency person. There is one observation that back office is too much complicated. Yes, I agree. And I can assure you that there's a massive work in progress. What has happened currently is that we have, in the last few months, we are changing the entire technology, because of which we are changing the app, we are changing the front end, we are changing the back office, we are changing many other things. That is why at times you feel interruptions, disruptions. Thankfully हमारे यहाँ trading में कोई disruption नहीं आई है, but off and on थोड़ा स्टॉक मिसमैच या जो बैक ऑफिस का whenever there's a legacy of a back office or a legacy of IT which runs back by 20-25 years, उसको चेंज करने में थोड़ा जरूर टाइम लगता है. So I think that is something which we are conscious of the fact, and that's a work in progress. And I think next few weeks or in few months you will see a very different front end of IT, and I think the hiccups which we are facing will be behind us. Hitesh is asking question. Hitesh, there will not be a first sign. There will be many signs, and few of the signs are already coming. But at the same time, when we have conviction in the stock and जिस तरह से वो move करते हैं, for example today Jio, and there are so many other stocks जिसमें भी कुछ ना कुछ होता है, and the kind of market we are witnessing, see market का base तो strong हो गया है. मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई crash वाली हम बात करें नहीं है, bubble वाली बात करें नहीं है, लेकिन yes sporadically जो हम अगर ज्यादा leverage कर लेंगे उसको डेंट करने के लिए कोई ना कोई ऐसा डिप आता रहेगा जो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल कर देगा. बट दैट अनकंफर्टेबल डज नॉट मीन कि मैं अपना सारा पोर्टफोलियो निकाल दूंगा. तो वेदर इट इज फर्स्ट साइन और सेकंड साइन और थर्ड साइन, ऐसा कोई भी मतलब गंदा वाला साइन नहीं है हितेश कि मार्केट बहुत खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं लग रहा. मार्केट मुझे लगता है कि फरवरी कुड बी, आई मीन इट्स टू अर्ली टू से, बट एज ऑफ नाउ देयर कुड बी टाइम करेक्शन. बट आई एम मोर वरीड अगर मार्केट में कुछ बड़ा डिप आएगा ना, it is not domestic. I am more worried because of the geopolitical tension. जो ये रेड सी में हो रहा है, मतलब वहाँ पे यूएस में भी इलेक्शन ईयर है, एंड जिस तरह से ईरान वाला और ये जो शिप्स पे अटैक हो रहा है, एंड अगेन वो ईगो वाली बात भी है, सब कुछ है, तो यूएस कैन टेक एक्शन जितना जो हुआ. सो आई थिंक दैट इज समथिंग which we have to keep at the back of our mind, and we should be conscious of the fact that geopolitical tension is the one. I mean, मतलब डोमेस्टिक नहीं, मुझे ऐसा लगता वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लगता है. डोमेस्टिक होगा तो कोई पेटीएम जैसी चीज हो सकती है या कुछ और चीज निकल के आएगा जिसमें कुछ खराब निकल आएगा, रिजल्ट्स ठीक नहीं थे जो हमने पॉलीकैब में देखा या पेटीएम में देखा. ऐसे इंडिविजुअल एक्सीडेंट्स होंगे, मार्केट एज ए होल नहीं लग रहा. ऑन द कॉन्ट्री मार्केट एज ए होल में इंडेक्स में अगर करेक्शन आता है तो मतलब इतना अच्छा सिनेरियो कि हमारे स्टॉक्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और स्टॉक्स में थोड़ा सा डिप आता है, वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि चलो स्टॉक्स ले लो, इंडेक्स की वजह से डिप आ रहा है, अभी तो ये चल रहा है. बाकी हम वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच एंड वी कीप शेयरिंग आवर व्यूज. सो एज ऑफ नाउ it is purely out of discipline, not out of any major domestic fear, because of which I say that there should be a massive profit booking. But yes, geopolitical tension is something which we should be conscious about. And see, talking of numbers, market चल चुकी है almost 20-25% in a very very short time, जो कि इसके पहले हमें सिर्फ कोविड के बाद में 2020 के लोअर सर्किट के बाद में जो हमें रैली देखने मिली थी. तो ये इतना चलने के बाद अब 22,000 के लेवल पे अगर आप 4% भी पकड़े तो 4% भी होता है 880 पॉइंट. तो अगर उतना भी निकाल दे तो भी होता है 21,120 का लेवल. तो अगर 20-25% चलती है मार्केट, तो 4-5% डिप अगर आता है तो उसे हम करेक्शन नहीं बोलेंगे. इसलिए ये दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. बट ये 22,000 से 21,000 अगर आता भी है निफ्टी, तो उसमें जो स्टॉक्स में डैमेज हो सकता है वो काफी हो सकता है. एंड दैट इज व्हाट आई थिंक आशु सर इज ट्राइंग टू से कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. जहां आपको इजी मनी आया है वहां पे आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते जाइए, कैपिटल फ्री करते जाइए,
या उसका हेजिंग हर टाइम नहीं हो सकता है, बिकॉज आपके स्टॉक्स मोस्टली जो भी रिटर्न आए होंगे वो एफएनओ में नहीं होंगे शायद। सो इसलिए बेस्ट थिंग इज यू टेक प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आप किसी को भी फॉलो करिए, मीडिया में फॉलो करिए या प्रिंट मीडिया में या एनालिस्ट फ्रेटर्निटी में, जैसे अवनी ने कहा 800 पॉइंट की करेक्शन आ जाएगी ना, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सब ये बोलेंगे कि दिस वाज वेरी नॉर्मल। लाइक अवनी तो ये भी बोलेगी कि अभी मैंने तो 10 दिन पहले ही बोला था कि अगर 25% मार्केट बढ़ा है 800 पॉइंट की। प्रॉब्लम ये है कि वो 800 पॉइंट, क्या मेरा 25% जो मार्केट बढ़ा था, क्या वो 4% मेरा 25% प्रॉफिट निकाल सकता है? जो पैसा मैंने 25% मार्केट में बनाया, प्रॉब्लम इज दैट कि वो 5% मार्केट करेक्शन मेरा 20-25% मार्केट की मूव का प्रॉफिट निकाल सकता है। दैट इज द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर इन दिस मार्केट एंड दैट इज द रियलिटी। इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे वो 5% भी मैटर करेगा। बट किसी भी एनालिस्ट से पूछोगे, वो सब आके बोलेंगे कि 5% तो कोई बड़ी बात नहीं है, 25% बढ़ा है, बट मुझे वो डैमेज नहीं करना चाहिए। आई थिंक दैट इज समथिंग विच वन हैज टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन, कि वो मेरा पैसा नहीं जाना चाहिए, वो एक नॉर्मल है। और एक बात बताता हूं, मुझे से बहुत लोग आके बोलेंगे, हम तो बोलते थे वैल्यूएशन बहुत है, इतना इजी मनी है, लेकिन आज क्या मैंने आपको बोला कि 10 के 10 अपने स्टॉक्स बेच दो, या 15 में से 10 स्टॉक बेच दो? कोई भी आपको ये भी नहीं बोलेगा कि बेच दो। लेकिन मैं जब घट जाएंगे तो हम बोलेंगे मैंने तो उस दिन कहा था कि ये सारा का सारा वैल्यूएशन है, इतना इजी मनी है, नहीं चल सकता, ये आएगा। सो ये सब सुनना, करना, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जरूरी है, लेकिन जो डिसिप्लिन है वो आपको फॉलो करना है। आपके दिल पे जरूर दस्तक आएगी कि मतलब आप भी सब सीजनड हैं, एक्सपीरियंस हैं कि कब तक कितना चल सकता है। सो वो जो एक होता है ना बेबी स्टेप्स, मतलब पहले मैं बहुत 400 मीटर भाग रहा था तो मैं बहुत लंबा भाग रहा था फुल स्पीड पे, उसके बाद धीरे हो गया। अब जो मार्केट में बेबी स्टेप्स होने चाहिए, बेबी स्टेप्स व्हेन आई से इट मींस इन टर्म्स ऑफ माय पोजीशन साइजिंग, दैट शुड बी बेबी स्टेप्स। कि अगर मेरे को अगर थोड़ा सा रिग्रेट होता है, नहीं यार बेच दिया, और बन जाता, दैट रिग्रेट ऑफ मेकिंग लेस मनी इज मच बेटर देन रिग्रेट ऑफ लूजिंग मनी। मार्केट में हमेशा आइडियाज की कभी कमी नहीं होगी, मार्केट में हमेशा पैसों की ही कमी होगी, इसलिए इट इज बेटर कि आप जहां जहां प्रॉफिट आ रहा है आप हमेशा बुक करते जाइए। अच्छा, यहाँ पे अभी एक जन का क्वेश्चन है कि अगर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट लेकर चलता हूँ तो क्या लॉस को कवर, सर आप अपना नाम बता दिए थे तो अच्छा होता, वी वुड हैव बीन मोर कंफर्टेबल। बट ये इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं कि अगर आपका ब्रेक इवन आता भी है तो भी जितना लॉस पोर्शन है, भले फिक्स्ड लॉस हो, उसको भी न्यूट्रल कैसे करते हैं उसके भी काफी सारे तरीके हैं। तो एक ट्रेड स्पेसिफिक अगर होता तो उसमें डिस्कशन में ज्यादा हम बता पाते थे। आशु सर प्लीज प्रोवाइड डेली स्प्रेड। इसका मैं आंसर दे चुका हूं, जब स्प्रेड होगा तभी होगा, डेली कंपल्सिव स्प्रेड नहीं होगा। So we are not discussing stock specific, trade specific view. एक जनरल डिस्कशन हम कर रहे हैं, आप ट्रेड स्पेसिफिक बाद में इंडिविजुअली कांटेक्ट कर सकते हैं। Best stock to buy for 1 year. I don't know which is that best stock, but yes, there can be bouquet of stocks जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जैसे in this conversation I mentioned कि I'm expecting because of the problems and जैसे चाइना ये सब हो रहा है, चाइना में इतना पैनिक है, मार्केट में शॉर्ट सेलिंग बैन की है, तो वहाँ पे कोई QE मेजर्स आ सकते हैं which will be helpful for metal stocks. Zomato मुझे हमारा कंसिस्टेंट बाय है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब इवन इफ यू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, प्रॉब्ली रिजल्ट्स आने वाले हैं, शुड बी वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स। BPCL, IOC, ONGC, सॉरी, ऑयल स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक अपनी विल आल्सो कंफर्म। सो आई थिंक यही कुछ स्टॉक्स हैं, इन्हीं में रहना चाहिए। एंड सबकी री रेटिंग हुई है, 10-10, 12-12, 15-15 साल के बाद इनमें ब्रेकआउट्स आए हैं, एंड द ब्रेकआउट्स हैव कम फॉर गुड। इट इज नॉट के टेम्परेरी, मतलब अभी भी हम जो करेक्शन की बात कर रहे हैं कि डिसिप्लिन प्रॉफिट बुकिंग, इसका मतलब ये नहीं कि कोई अगेन क्रैश आने वाला है। देयर कुड बी सम डिप एंड आई डोंट वांट दैट व्हाट वी मेड इन 2000 पॉइंट्स शुड लूज इन 500 पॉइंट्स फॉल। दैट इज something which is very important. Thank you, Suraj, for identifying yourself. Please, for individual trade specific queries, it's better if we can get in touch one-on-one. Yeah, you can write a mail to Avni, she will reply you. How to read open interest? So, as we discussed, एकदम डिटेल में तो हम अभी गए नहीं है हर एक चीज को देखने के लिए, बट ओपन इंटरेस्ट का एक बेसिक फंडा ये है कि ओपन इंटरेस्ट जो बेसिक है वो तो मैं सबको पता है मार्केट में कि प्राइसेस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब लॉन्ग एडिशन हो रहा है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू नोटिस इज कि मान लीजिए आपका स्टॉक बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है,
तो एक सीधी सीधी बात है कि ऊपर के तरफ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है और अपसाइड लिमिटेड है. सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ रीडिंग ओपन इंटरेस्ट ऑल्सो. और अगर ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर का और ऑप्शंस का अलॉन्ग विथ आईवीज अगर आप मिला के पूरा ओवरऑल पिक्चर देखें तो उसमें काफी बेटर आइडिया मिल जाती है ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक. I think we have covered most of the things, but all I can assure you, after long we have done this kind of a webinar, but I assure you we'll keep doing this every month or maybe fortnightly also if required. And please share your feedback and what kind of content which you want from us. I think ये market की बात तो एक standard रहेगी हम हर बार करेंगे. And that is the reason people see there are a lot of people who tells me to start a Telegram channel or YouTube channel, but I say कि I want to confine myself to only JM business partners and JM clients, no outsider. That is why, and you can treat it as a personal channel and feel free. You have all the connects with our team members, and as and when they will say that the frequency of these webinars have to be increased to weekly basis, fortnightly or monthly basis, we'll be happy to do that. And this is just the beginning, all I can say. So thank you everyone for participating. And even if you still have questions, you can send us a mail or we'll reply to that. Thank you all for joining. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.